Assalamu class, this is week number 8 and we will continue the chapter 8 from where we left off. This week we will discuss the remaining part of the requirement management, that is traceability, versioning and change management. So let's start the lecture with the fourth part, that is traceability. And traceability is considered as the ability to trace the requirements over the course of the entire life cycle of the system. So what advantages do we get out of from the traceability are mentioned here. The use of the traceability information supports system development in many aspects, and it is considered as a precondition for establishing and using certain techniques during the development. In verifiability, we trace if the requirements have been implemented in the system. In identification of gold-plated solution in the system, we trace identifying unneeded properties of the requirements. In identification of gold-plated solution in the requirements, we trace requirements which do not contribute to any goal. In impact analysis, we trace the effects during change management. In reuse, we use to trace requirements in previous development artifacts. In accountability, we trace who was assigned to develop the requirements. In maintenance, traceability helps us to identify simplest system maintenance. So let's move on, check out the purpose of the traceability. To establish effectively and efficiently the information in the traceability should be chosen keeping in view the purpose that it will serve. Information for system development or evolution. If information is not recorded purpose driven, it often results in incomplete, unstructured, and erroneous, and cannot be further used. The included literature on the topic of requirement traceability suggests different kind of traceability of requirements. A common differentiation is distinguishing between pre-requirement specification traceability and post-requirement specification traceability. Therefore, we will be able to distinguish between three kinds of traceabilities. Number one, pre-requirement specification traceability. It links between requirements and those artifacts that are the basis of the requirement, like the source or the origin of the requirements. तो प्री ट्रेसेबिलिटीज़ वो होती हैं जो आप लोगों ने पीछे पहले कोई आर्टिफैक्ट्स बनाए होते हैं या पहले आपने कोई प्रोजेक्ट किए होते हैं तो उनके साथ लिंक किया जाता है आपके जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, उसमें जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को लिखा है. Post traceability, it comprises traceability information between requirements and artifacts or subsequent development activities जो हमने बाद में करनी है. Like artifacts could be components, implementation or test cases that belongs to a requirement. तीसरा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रेसेबिलिटी बिटवीन रिक्वायरमेंट्स. जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उनके बीच में भी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए. द ट्रेसेबिलिटी बिटवीन रिक्वायरमेंट्स इज अबाउट मैपिंग डिपेंडेंसीज बिटवीन रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों ने गैदर की हैं. Like traceability is the information that a requirement defines another requirement, generalizes it or replaces it. So here we can see a picture that shows pre-requirement specification traceability जो आपने पहले artifacts बनाए हैं. अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड की है तो वो यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया जाता है. सिमिलरली जो आप लोग बाद में आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर वो आप लोग यहाँ पे शो करेंगे. रियलाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कि ये किस तरह बनेंगी, डेवलप होंगी, जिसमें टेस्ट केसेस वगैरह या इम्प्लीमेंटेशन होती है इनकी. सिमिलरली ये तीसरा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों की आप लोगों ने गैदर की रिक्वायरमेंट्स उनके बीच में भी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ द ट्रेसेबिलिटी एग्जांपल यूजिंग द फिगर. तो अगर आप फिगर देखें, इस फिगर में आप लोगों को तीन किस्म की ट्रेसेबिलिटीज़ दिखाई गई हैं रिक्वायरमेंट्स की. अगर आप देखें तो इसमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट नंबर 14 दिखाई गई है और रिक्वायरमेंट 14 जो है वो उसका ओरिजिन जो है आर द आर्टिफैक्ट्स इन द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट्स. जो उसको इन्फ्लुएंस करा है, जो आपके पिछले प्रीवियस जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो उसको इन्फ्लुएंस करा ताकि आप ये रिक्वायरमेंट बनाएं. पोस्ट की बात की जाए, ये तीन जो है आपके पास पोस्ट हैं रिक्वायरमेंट 14 के. कंसिस्ट ऑफ द रिलेशंस टू द कंपोनेंट इन अ रफ डिज़ाइन, द रिफाइंड डिज़ाइन जो है एंड द रिस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज द टेस्ट केसेस that are used during system testing and verify the implementation requirements in the development phases. तो इसमें आप देखें हमारे पास यहाँ पे implementation and test cases भी हैं और rough design भी हैं. अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसके डिज़ाइन भी किया जाता है. In addition to these two figures जो है आपको दिखाती है traceability in between the requirements.
द ट्रेसिबिलिटी लिंक यहाँ देखा जाए तो R14 का जो है वो R11 के साथ जाके टच होता है, और इससे हमें पता चलता है कि R14 जो है वो बेसिकली R11 से ड्राइव किया गया है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी। हम इनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन अप्रोचेज टू रिप्रेजेंट ट्रेसिबिलिटी आर सिंपल टेक्सचुअल रेफरेंस एंड हाइपरलिंक्स, या आपके पास ट्रेस मैट्रिक्स होते हैं या आपके पास ट्रेस ग्राफ्स होते हैं। और ट्रेस ग्राफ्स के अंदर हम लोग मजीद पढ़ेंगे ट्रेसिबिलिटी चेन्स क्या होती हैं। तो टेक्स्ट बेस्ड रेफरेंसेस जो होते हैं, द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन इन रिक्वायरमेंट इज बाय मार्किंग like ID or name in the requirement, or marking are established using hyperlinks between the initial artifacts and the target artifacts. जब डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हैं तो आप उसमें हाइपरलिंक्स लगा देते हैं जिसको आप क्लिक करके रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक है। फॉर लिंकिंग आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स विद स्पेसिफिक लिंक सेमेंटिक्स में बी यूज। तो हाइपरलिंक लगाने का तरीका क्या है वो डिपेंड करता है, आप कोट करेंगे या आप उसको कुछ सिस्टम के पास प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो वो टूल्स भी हो सकते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं हाइपर लिंक करने में। दूसरी कॉमन टेक्निक जो हमारे पास ट्रेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाने के लिए वो है इंफॉर्मेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड प्रीवियस एंड पोस्टीरियर आर्टिफैक्ट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस आर ट्रेस मैट्रिक्सेस। ये हेल्प करती हैं आप लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस को ईज करने में। एक एग्जांपल दिखाई गई आपको ट्रेस मैट्रिक्स की। द रोज इन द ट्रेस मैट्रिक्स कंटेन द इनिशियल आर्टिफैक्ट। तो इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं उसमें आपके पास एक आर्टिफैक्ट होता है, कोई रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है लेट्स सपोज। द कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है टारगेट आर्टिफैक्ट, जिसका मतलब है कि कहाँ से ये में जो आपकी रिक्वायरमेंट ली गई है उसकी सोर्स क्या है। डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स क्या बनाएगा इसके, मे बी आपने इसके लिए कोई प्रोटोटाइप बनाया हो या कोई और रिक्वायरमेंट्स हो। इफ़ द ट्रेस लिंक एग्जिस्ट बिटवीन एन इनिशियल आर्टिफैक्ट इन अ रो एन एंड अ टारगेट आर्टिफैक्ट इन कॉलम एम, तो सेल एन एम इज़ मार्क्ड इन द ट्रेस मैट्रिक्स। तो उसमें हम लोग ट्रेस मैट्रिक्स बनाई जाती है और उसके हम लोग मार्किंग कर देते हैं। तो देखा जाए तो जी ट्रेस मैट्रिक्स को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जहाँ पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं, लेट्स सपोज आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कहीं 2000 तक चली गई हैं, तो आप उसके लिए अगर एक ट्रेस मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स बन जाएंगे। तो हम लोग उसके लिए मल्टीपल ट्रेस मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में तो उसने मल्टीपल शो कराने के लिए उसके पीछे उसने डिफरेंट मल्टीपल टेबल्स दिखाई हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टेक्निक विच इज़ ट्रेस ग्राफ। तो ट्रेस ग्राफ जो है एक किस्म का ग्राफ होता है in which all nodes represent artifacts and all edges represent relationship between artifacts. इनके रिलेशनशिप्स को आपस में हम देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेस होती हैं बाय मीन्स ऑफ असाइनिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नोड्स एंड एजेस ऑफ द ग्राफ को दिए जाते हैं। तो इस फिगर को डिस्कस करते हैं। इस फिगर में जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन की वो बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर इस ग्राफ को देखें, अ नोड टाइप इज़ डिफाइंड फॉर ईच टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट, जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने सी लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने REQ लिखा हुआ है और कंपोनेंट्स को हम लोगों ने COMP लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के टाइप ऑफ एजेस हैं जो कि डिफाइन करते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसिबिलिटीज़ को, जिसमें हम लोग देखते हैं जी कि रियलाइज थ्रू, इज ओरिजिन एंड रिफाइन। इस टेक्निक में हमारे पास ट्रेसिबिलिटी चेंज की टेक्निक भी है। ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैनेज की जाती है और डॉक्यूमेंट की जाती है अबाउट द प्रीवियस आर्टिफैक्ट्स, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स कौन थे, इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स क्या थी। उसमें हम लोग पोस्टीरियर आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट केसेस एंड कंपोनेंट्स वगैरह देखे जाते हैं क्या बनाए जाएंगे। ट्रेसिबिलिटी चेन फॉर द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड एट डिफरेंट लेवल्स ओवर द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम विच इज़ डन यूजिंग टूल्स। तो हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। इट डिस्प्ले immediate relation or entire traceability chain for the requirement. It is useful during requirement change management. तो requirement change management के process के अंदर हमारे पास traceability change जो है बहुत helpful होती हैं। Let's move on और देखते हैं कि हमारे पास ये versioning of requirements जो है वो क्यों important है documents के अंदर और इनकी maintenance हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो ये baseline हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुके हैं जी कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड की जाती हैं या एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को हम लोग रिमूव कर लेते हैं या उनको हम चेंज कर लेते हैं। तो रीज़न जो चेंज का है वो काफ़ी डिफरेंट नौयत का है। वन पॉसिबल रीज़न इज़ दैट स्टेक होल्डर्स मे लर्न मोर अबाउट द सिस्टम और वो चेंजेस करवा दें उसके अंदर।
which will result in new and altered requirements. Due to these changes, a suitable versioning or requirement is strongly advisable. तो हम लोग इसकी वर्जनिंग ज़रूर रखते हैं कि पहले उसमें ये इंक्लूड था और बाद में उसमें हमने ये चीज़ इंक्लूड की. तो सब्जेक्ट ऑफ वर्जन कंट्रोल, अगर कंट्रोल को देखा जाए इसमें हम लोगों को किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह हम लोगों ने इसको यूज़ करना है और मेंटेन करना है. वर्जनिंग हेल्प्स अस टू एक्सेस चेंज स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम. तो लाजमी चेंजेस आ सकती हैं, कोई भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को चेंज करा सकता है. द वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट कंटेन्स स्पेसिफिक कॉन्टेंट जो कि चेंज किया गया है, एंड रिक्वायरमेंट्स इज मार्क्ड बाय अ यूनिक वर्जन नंबर, उसको हम लोग वर्जन दे देते हैं. द इन्फॉर्मेशन दैट इज सब्जेक्ट टू वर्जन मैनेजमेंट कैन बी, वजह बहुत सी हो सकती हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखी गई हैं. सिंगल टेक्स्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स, अ सेंटेंस, सेक्शन और एंटायर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स एंड पार्शियल रिक्वायरमेंट मॉडल्स. तो ये जो चार वजूहत हैं, इसके अलावा भी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं जिनकी बेस पे आप लोग वर्जन मैनेजमेंट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को वर्जन देते हैं. तो वर्जनिंग देने से हमें क्या फ़ायदा होता है? जब हम रिक्वायरमेंट्स को वर्जन देते हैं तो ये हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में एक वर्जन और उसके अंदर कितनी इंक्रीमेंट्स हो चुकी हैं. लाइक द वर्जन 1.2 रेफरेंसेस अ रिक्वायरमेंट विद वर्जन 1 एंड 2 इंक्रीमेंट्स, मतलब इसमें 2 बार चेंजेस हो चुकी हैं. तो अगर आपका पूरा वर्जन चेंज हो जाता है तो वर्जन 1 से 2 पे चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों की बिग चेंज है. वेयर एज अगर आपको स्मॉल चेंजेस होती हैं तो उसको आप लोग इंक्रीमेंट से डिफाइन करते हैं. तो रिक्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, रिक्वायरमेंट जो है उसमें एक एडिशनल चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. वो कंडीशन ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स जब लिखी जाती हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वर्जन भी होना चाहिए, और वो वर्जन एक होना चाहिए जो कि फाइनल है, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें किसी एक वर्जन नंबर के साथ. अ वर्जन डायमेंशन where configuration management consider the various change states as part of version management with a product dimension, कि जी कितना आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है उस लिहाज से आपको कितना प्रोडक्ट में चेंजेस आए. तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में क्या डायमेंशन है हमारे पास, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब इन 2 डायमेंशंस. एक प्रोडक्ट डायमेंशन होता है और एक वर्जन डायमेंशन होता है. तो रिक्वायरमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की क्या डायमेंशन है वो देखते हैं. मतलब है कि जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 डायमेंशंस. प्रोडक्ट डायमेंशन है हमारे पास और वर्जन डायमेंशन है. तो प्रोजेक्ट डायमेंशन के ना हम लोग देखते हैं कि जी के रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी गई थी और उससे हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट डेवलप करना था. वेयर एज वर्जन डायमेंशन जो है वो आपको बताती है जी कि जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी थी उसमें कितनी चेंजेस आ चुकी हैं, कितनी स्टेट्स चेंज हो चुकी हैं उसके अंदर, और उससे आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, कि बेहतर हुआ या वो कैंसिल कर दिया गया या उसकी जगह कुछ और प्रपोज किया गया. ये जो फिगर दिखाई गई है आप लोगों को, ये दोनों डायमेंशंस को के बारे में इंफॉर्मेशन देती है आप लोगों को. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं वो रिक्वायरमेंट एक्सेस है. ऑन द वर्जन एक्सेस द डिफरेंट वर्जन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर डिपिक्टेड, दिखाए गए हैं. नेक्स्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट ऑफ वर्जन्स है. रिक्वायरमेंट्स की जो लिखी जाती हैं लिस्ट दी जाती है. वेयर ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट बेस मे अकर एट मोस्ट वंस इन द रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन. तो इन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट एक होनी चाहिए. मतलब आप लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी नज़र आनी चाहिए, उसको कोई नंबर आईडी दिया होना चाहिए. A requirement configuration does not contain a version of every requirement that is considered in the product dimension. तो कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लिस्ट की जाती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल कनेक्शन क्या है उनके, कंसिस्टेंसी कितनी है उसकी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इम्यूटेबल और बेसिस ऑफ रोल बैक. तो लॉजिकल कनेक्शन की बात करते हैं तो द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन आर डायरेक्टली logically connected to one another, that is a goal oriented group of requirements to a common configuration has been performed. तो जो उनकी आपस में लिंकेज है वो दिखाई जाती है लॉजिकल में कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं. अगर इसमें कुछ चेंज किया जाए तो वो दूसरों पे भी अफेक्ट करेगा. यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल कनेक्शन हेल्प करता है बताने में आप लोगों को. कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, द रिक्वायरमेंट कंटेन्स इन अ कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट वन अनदर. और कंसिस्टेंसी की नई चीज़ देखी जाती है कि जी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती और कॉन्ट्रडिक्शन फ्री होती हैं अपने प्रोस्पेक्टिव वर्जन के अंदर. अ कॉन्फ़िगरेशन हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर. नेक्स्ट जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसका मतलब है कि उनका एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है उनको
that can be used uniquely to identify the configuration. Immutable की बात करते हैं. A configuration defines a certain immutable state of the specification. If requirements of the configuration are changed, a new version of the requirement and potentially of the configuration is the result. Immutable को देखते हैं. A configuration defines a certain immutable state of the specifications. अगर आपकी स्पेसिफिकेशन चेंज की जाएगी तो उसके लिए हमें फिर नया वर्जन और उसकी नई कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा. बेसिस फॉर रोल बैक की बात करते हैं. इफ़ चेंजेस ऑफ द रिक्वायरमेंट मस्ट बी अनडन. बेसिस ऑफ रोल बैक का मतलब है कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस किए हैं जो कि आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको रोल बैक कर सकें पुराने वर्जन के ऊपर और विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल. देयरफॉर अ कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ द स्पेसिफिकेशन कैन बी मेंटेन्ड. तो इससे हम लोग फिर एक मेंटेन कर सकेंगे स्टेट को जब हम इसको रोल बैक कर सकेंगे. तो रिक्वायरमेंट बेस लाइन्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. कॉन्फ़िगरेशन और बेस लाइन में फ़र्क क्या होता है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे हम लोग. रिक्वायरमेंट बेस लाइन्स जो होती हैं आर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस और रिक्वायरमेंट्स दैट टिपिकली कंप्राइज स्टेबल वर्जन्स. ये स्टेबल वर्जन्स पे बुनियाद करती हैं. और अगर आप देखें तो आपकी डायग्राम में ये वो ग्रे पार्ट जो है ये दिखा रहा है कि ये स्टेबल वर्जन्स हैं. और इन स्टेबल वर्जन्स की बेस के ऊपर आप लोग रिलीजेस को डिफ़ाइन करते हैं अपने सिस्टम की. और यही वो प्रॉपर्टी है जो बेस लाइन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है और उनको अलाउ करता है कि आप उनको एक्सटर्नली शो कराएं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जी देखिए इतना काम हम लोगों का पक्का हो चुका है और हम इन रिलीजेस के अंदर इन रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो फिर उनको डेवलप कर सकते हैं. व्हेन रिक्वायरमेंट बेस लाइन्स आर यूज्ड तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप लोगों के डेवलपमेंट प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं क्योंकि बेस लाइन्स जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं वर्जन्स वगैरह के लिहाज से. Basis of release planning, estimation of effort involved with implementation, comparison of competing products वगैरह इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं और एस्टिमेट लगा सकते हैं. और लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलीज प्लानिंग के लिए. तो बेस लाइन्स जो होते हैं वो बेसिस ऑफ रिलीज किस तरह बनते हैं. बेस लाइन्स जो होते हैं उसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं सिस्टम की और बता सकते हैं जी कि हम ये इतना कुछ डेवलप कर लेंगे. तो उन रिलीजेस के अंदर बेस लाइन्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डिफाइन करने में और रिक्वायरमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन को. तो सिमिलरली रिलीजेस के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप एफर्ट देख सकें, रियलाइज़ कर सकें. सिस्टम रिलीज़ के अंदर अगर आप लोगों ने एक एफर्ट डालनी है तो वो कितना एस्टिमेट होगा हमारा, उसमें एफर्ट कितनी लगाई जाएगी. तो वो पार्शल जो आप लोगों की एफर्ट्स होती हैं उनको हम लोग सम अप करके एक टोटल एफर्ट देखी जाती है और उस लिहाज से हम लोग देखते हैं कि जी के आपका कितना कॉस्ट हो, कितना टाइम हो, कितनी रिसोर्सेज उसको उसको चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो सके. सिमिलरली जो आप लोगों की रिमेनिंग बेस लाइन्स रह गई हैं जिन पर भी काम होना है उनके एफर्ट्स को भी इसके अंदर समाप्त किया जाता है कि उसमें कितना काम मज़ीद अभी करना रहता है ताकि वो कंप्लीट हो जाए. कंपैरिजन ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. रिक्वायरमेंट्स बेस लाइन कैन बी यूज टू कंपेयर द प्लान सिस्टम टू कंपीटिंग सिस्टम. तो जो आप लोगों ने एक प्लान सिस्टम बनाया था कि इस तरह बनेगा और उसके अगेंस्ट कोई कंपटीशन में उसका कोई सिस्टम है तो उसके साथ उसको आप लोग कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं जी कि आप लोग क्या कुछ अभी बना के दिखाएंगे जो कंपटीशन के अंदर दूसरे सिस्टम के साथ आप उसको कंपैरिजन करके देख सकें जी कि इन दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है. तो बेस लाइन में बेसिकली वो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं बताते हैं कि जी इनको पहले आप डेवलप करवाएं क्योंकि मे बी उनके पास इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे कंपटीशन में आपके पास सिस्टम हो और आप उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को दिखना चाहते हो कि जी के आपकी रिक्वायरमेंट्स जब एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट होंगी तो वो एक कंपेटिटिव जो आप लोगों का सिस्टम है उसके साथ वो कैसी दिखेगी और कितना हेल्पफुल होगी, उससे बेहतर होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ देखी जाती है फिर बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके. अब जब आप लोगों ने इतनी चेंजेस करवा दी हैं और ये चेंजेस तो होंगी टाइम के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट में, तो उसके साथ कुछ हमारे पास चीज़ें जिसको हम बोलते हैं चेंजेस आती हैं. उन चेंजेस को भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वर्जनिंग में बेसिकली चेंजेस का बड़ा अमल दखल था और चेंजेस की वजह से हमारे पास वर्जनिंग चेंज हो रही थी. तो मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर. रिक्वायरमेंट्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल सिस्टम. इसका मतलब ये हुआ कि द न्यू रिक्वायरमेंट्स आर एडेड एंड एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो चेंज कर दी जाती हैं या रिमूव कर दी जाती हैं. तो उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स मूव ऑन और देखें रिक्वायरमेंट चेंजेस होती क्या हैं. पहली बात तो ये है समझना कि जी चेंज आई क्यों और करनी क्यों पड़ती है. द रीज़न फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेरियस. कोई भी रीज़न हो सकती है.
तो चेंजेस जो कि स्टेम कर रही थी आप लोगों की एरर्स की वजह से जो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, इसके अलावा इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी चेंज आ सकती है। एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से भी चेंज आ सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, चेंजेस इन द स्टेक होल्डर डिज़ायर एप्लीकेशन। मतलब आपका जो स्टेक होल्डर है वो कहता है जी कि मेरे सिस्टम या प्रोजेक्ट के अंदर फलां चीज़ ऐड की जाए। अमेंडमेंट्स टू लॉ, कोई लॉ आप उसमें नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसको से आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कोई टेक्नोलॉजी आप ऐड करना चाह रहे हो, और एडिशनल कंपटीशन इन द मार्केट कैन इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट्स एंड मेक नेसेसरी चेंजेस। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से चेंजेस आपकी रिक्वायरमेंट्स में की जा सकती है। और रिक्वायरमेंट्स इनिशियली गैदर करने के बाद जब उनमें चेंजेस की जाती है तो उनकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है कि जो चेंजेस आती हैं उनको फिर हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि हम उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। एक आखिरी वजह जो आप लोगों की चेंज जो है वो प्रोड्यूस करती है वो सिस्टम फेलियर है, जो कि डिप्लॉयमेंट के बाद पता पता चलता है कि जी समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम, सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से भी आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो चेंजेस पर से आर नॉट नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ जी कि अगर आप अपने सेल्फ बेस के ऊपर चेंजेस कर भी दें तो वो बेहतर ही होती हैं, वो गलत नहीं होती, उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। दे इंडिकेट दैट स्टेक होल्डर्स ऑब्जर्व सिस्टम क्लोजली, वो सिस्टम काफ़ी क्लोजली देख रहे होते हैं और उससे सीख रहे होते हैं, नए फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। तो चेंजेस जो हैं वो अच्छी बात है, टाइम के साथ आती हैं, और अगर आप खुद उनको देख के ऑब्जर्व करके चेंजेस ले आएँ तो वो भी बेहतर होता है। इफ़ चेंज रिक्वेस्ट आर नॉट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, रिक्वायरमेंट जो है उनकी प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लो कर देता है, क्योंकि आपका जो स्टेक होल्डर है वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा। तो आप उनकी प्रायोरिटी लो करके दूसरी रिक्वायरमेंट्स को आप लोग ऊपर ले आते हैं जिनको ज़्यादा स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उन पर पहले काम कर दिया जाता है। तो क्या ये जो चेंजेस और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या ये मैटर करती है हमारे लिए? तो चेंज फ्रीक्वेंसी एज ए इंडिकेटर फॉर प्रोसेस क्वालिटी, तो ये आपकी प्रोसेस क्वालिटी को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपने आपका जो काम अभी तक चल रहा है, जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं, या आपका जो इंजीनियरिंग प्रोसेस चल रहा है वो कितना अच्छा रहा। इफ रिक्वायरमेंट्स चेंज अकर वेरी फ्रीक्वेंटली द डेवलपमेंट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल। तो ज़्यादा चेंजेस अगर करेंगे तो फिर आप चेंजेस में फंसे रह जाएंगे, डेवलपमेंट तो नहीं हो सकेगी। अ हाई चेंज फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स inadequately performed requirement engineering activities such as elicitation and negotiation techniques। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। आपने लिखने में और उन टेक्निक्स में जो एलिसिटेशन की टेक्निक है वो आपने प्रैक्टिस नहीं की, और आपने उन अपने स्टेक होल्डर्स को उस चीज़ पर मनाया नहीं कि जी कि जो रिक्वायरमेंट्स लिखी जा रही हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो बाद में जब इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो वहाँ पे ये वैलिडेशन हो रही है, तो वहाँ पे जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो स्टेक होल्डर है वो उस पर कह रहे हैं कि जी इनको ठीक किया जाए। तो जहाँ पे ठीक करने की बात आती है आपको बार बार चीज़ों को, तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस क्वालिटी गिर जाती है। और सिमिलरली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से आप टाइमलाइन में पीछे हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकती है आप लोगों की। तो ये अच्छा नहीं होता। तो इन चेंजेस को मैनेज करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसको हम लोग चेंज कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ द सिस्टम लाइफ साइकिल इट इज़ नेसेसरी टू एड्रेस चेंजेस रिक्वेस्टेड फॉर रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करवाई गई हैं उनको आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू लिखें और डॉक्यूमेंट करें या उनको डिफाइन करें। और ये जो आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है ये जस्टिफाई करेगा डिसीजंस को कि जी के वेदर अ चेंज रिक्वेस्ट इज़ अप्रूव्ड एंड हाउ इट इज़ अप्रूव्ड। तो चेंजेस कैन रेफर टू एन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और द एंटायर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो चेंजेस या तो एक रिक्वायरमेंट की भी आ सकती है या पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। The evaluation of requirement changes as well as a decision about performing the change is usually the responsibility of the change control board। तो सारी चीज़ें बेसिकली वही कंट्रोल कर रहा होता है जी कि किसने क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या चीज़ चेंज नहीं करनी है, वो कंट्रोल बोर्ड जो होता है आप लोगों का वही डिफाइन कर रहा होता है। तो कंट्रोल बोर्ड के क्या टास्क होते हैं वो देखें। इसमें पहला टास्क हमारे पास आता है वो एस्टिमेशन है। वो एस्टिमेट लगाते हैं जी कि जो चेंजेस आप लोगों ने डिफाइन किए हैं उसमें कितनी एफर्ट लगेगी। एफर्ट एनालिसिस को मज़ीद एनालिसिस करने के लिए या देखने के लिए आप उसको थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं ताकि वो उसका एस्टिमेट लगा के दे सकें जी इसमें कितना मज़ीद टाइम लगेगा ताकि ये चेंजेस इंप्लीमेंट की जा सकें। इवेल्यूएट चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट जो आपके पास आई है उसको इवेल्यूएट भी करेंगे बेस्ड ऑन दी एफर्ट
और बेनिफिट रेशो के ऊपर कि जी कि हमें इसको चेंज को इम्प्लीमेंट करने से हमें कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, और हम उसमें जितनी एफर्ट लगा रहे हैं क्या वो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं। चेंज कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट चेंजेस को भी, जिसमें वो डिफाइन करता है न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। तो पहले जो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या लिखी हुई थी, तो उसको डिफाइन करता है कि नए तरीके से कि जी इसमें अब क्या चेंज आएगी और उसको किस तरह फुलफिल करना है आप लोगों ने। डिसाइड अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, डिसाइड करता है कि आपने जो अगर जो चेंजेस डिफाइन की हैं वो एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। क्लासीफाई करता है इनकमिंग चेंज रिक्वेस्ट को, तो क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे। प्रायोरिटाइज करता है एक्सेप्टेड चेंज रिक्वेस्ट को कि जी आपने जो चेंजेस कही हैं, लेट्स सपोज आपने 10 रिक्वायरमेंट में चेंजेस निकाल दी, तो उनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पहले चेंज करना है, तो उनको प्रायोरिटाइज करता है। असाइन एक्सेप्टेड चेंज रिक्वेस्ट टू चेंज प्रोजेक्ट, तो एक्सेप्ट करना कि जो चेंज रिक्वेस्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आएँ, तो ये चेंज कंट्रोल बोर्ड ही करता है। देयर आर सर्टन केसेस जिसमें आपका जो कंट्रोल बोर्ड होता है, चेंज कंट्रोल बोर्ड जो होता है, वो अपनी ये सारी ड्यूटीज़ जो है किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। मे बी वो कोई स्पेसिफिक बंदे ना हो, जबकि कोई थर्ड पार्टी आ जाए जो कि इस काम को बेहतर समझते हैं और वो करें। अगर थर्ड पार्टी ये डिसीजन लेगी चेंजेस के ऊपर, तो वो जो चेंजेस हैं वो निगोशिएट भी करेंगे और एग्री भी करवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। द चेंज कंट्रोल बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स, इसमें हमारे पास चेंज मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्वालिटी एश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव्स और रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स इंक्लूड होते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो चेयरपर्सन का है, और वो कौन होता है? चेयरपर्सन जो है इनके अंदर वो चेंज मैनेजर होता है। जहाँ पे चेयरमैन होने के उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वो मीडिएटर का होता है, जिसमें वो पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए, क्योंकि चेंजेस आ रही होती है तो लोग उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, तो उनको निगोशिएट करता है और डिसीजन लेता है कि जी कि इसको इस तरह पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा द चेंज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डिसीजंस, तो बातचीत करना पार्टीज के बीच में उसका काम है, और डॉक्यूमेंट करना इन डिसीजंस को कि जी हमने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या चेंज करवाना है, वो सब कुछ आपका चेयरपर्सन ही कर रहा होता है। तो चेंज रिक्वेस्ट का टेम्पलेट किस तरह का होता है? To manage changes of requirement during requirement engineering, they have to be documented in a purpose oriented manner, तो उसमें किसी चीज़ों को स्पेसिफिकली तरीके से रखा जाता है ताकि उनका हम पर्पस समझ सकें कि जी के ये किस तरह लिखी जाती है चेंज, और उसमें क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट देखा जाए तो उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, द डिजायर्ड चेंज और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इसमें आप लोग देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं किसको देनी है, कौन करेगा, कितनी देर में ये चेंज हमारे पास वापस आना चाहिए, मे बी ये क्रूशल हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, किस रिलीज में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें चेंज रिक्वेस्ट का मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो चेंज रिक्वेस्ट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो आप जब चेंज रिक्वेस्ट लिख रहे होते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पहली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो आइडेंटिफायर है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ चेंज रिक्वेस्ट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। टाइटल समराइज करता है, एक छोटा सा ब्रीफ आपका सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट होती है जो कि बताता है जी के कंसर्न कि जी ये क्या चेंज है। चेंज की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लिखना कि उसका इफेक्ट क्या है, मतलब कि वो इफेक्ट जो है वो जो चेंजेस आएंगी वो सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हैं या उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या उनकी एफर्ट के लिहाज से, या डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी एफर्ट की प्रायोरिटी क्या है, या प्रोजेक्ट के अंदर उस एफर्ट की प्रायोरिटी क्या है। जस्टिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न एज टू वाई द चेंज इज़ नेसेसरी, इसमें जस्टिफिकेशन जहाँ दी जाती है वहाँ पे डेट लिखी जाती है कि चेंज रिक्वेस्ट जो थी वो कब फाइल की गई, एप्लीकेंट का नाम दिया जाता है, द नेम ऑफ द पर्सन दैट इशूड द चेंज रिक्वेस्ट, प्रायोरिटी देखी जाती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेंट्स ओपिनियन के उसके ख्याल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उसके रिस्क को देख के उसको हाई रखेगा या उसको लो प्रायोरिटी देगा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होती है प्रायोरिटीज़ जो दी जाती हैं। तो चेंज रिक्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ों के साथ साथ उसके अंदर ये चीज़ भी बताना इंपॉर्टेंट होता है कि जी चेंज वैलिडेटर कौन होगा। ये वो पर्सन होता है जो वेरीफाई करता है इफ़ द चेंज हैज़ बीन परफॉर्म करेक्टली, तो जो चेंजेस बताई गई थी क्या आपने उनको परफॉर्म कर लिया है या उनमें भी कोई कमी रह गई है। इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेटस, ये एक मार्किंग होती है
जो कि बताता है कि इफ़ एन इम्पैक्ट एनालिसिस हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड ऑन द चेंज रिक्वेस्ट। तो इम्पैक्ट का मतलब ये है जी कि उसका आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना मुस्बत असर पड़ेगा अगर वो चीज़ डेवलप की जाए। तो कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, वो डिसाइड करेगा स्टेटस। यहाँ पे वो फिर मार्क करते हैं वेदर द चेंज कंट्रोल बोर्ड हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन द चेंज रिक्वेस्ट। मतलब है क्या जो आपकी रिक्वेस्ट चेंज थी, क्या उसको कंट्रोल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि नहीं किया। कंट्रोल बोर्ड प्रायोरिटी देखी जाए तो डॉक्यूमेंट द प्रायोरिटी ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट असाइंड बाय द कंट्रोल बोर्ड। तो कंट्रोल बोर्ड भी इसको असाइन करता है, जिसमें हम लोगों ने पीछे चेयरपर्सन की बात की थी। वो असाइन करते हैं जी प्रायोरिटी ऑफ द चेंज कितनी है और उस लिहाज से उसको कहाँ पे और किस इम्प्लीमेंट करना है। मतलब फर्स्ट रिलीज़ में या किसी लेटर रिलीज़ में आप उसको फिर प्रायोरिटी बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या उसके ऊपर मज़ीद काम किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्स द पर्सन दैट इज़ इन चार्ज ऑफ परफॉर्मिंग द चेंज रिक्वेस्ट। तो वो कौन बंदा होगा जो कि चेंज रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सिस्टम रिलीज डॉक्यूमेंट सिस्टम रिलीज इन विच द चेंज रिक्वायरमेंट शैल बी इम्प्लीमेंटेड। तो प्रायोरिटी के बेस के ऊपर देखा जाता है कि कहाँ पे और कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा चेंज को। तो पीछे हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, जो कि कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो क्लासीफाई करता है आपकी इनकमिंग चेंज रिक्वेस्ट को। तो चेंज रिक्वेस्ट जो होती है वो तीन सेक्शंस में हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला देखा जाए तो करेक्टिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दूसरी अडाप्टिव होती हैं, तीसरी एक्सेप्शनल चेंज होती है। करेक्टिव रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अ चेंज रिक्वेस्ट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रीजन इफ इट इज़ अ फेलियर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग द ऑपरेशन विच इज़ अ कॉज ऑफ एन एरर इन द रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब है कि जी आपकी चेंज आई क्योंकि आपका सिस्टम फेल हो गया, उसमें कोई गलती हो गई, कोई ग्लिच आ गया, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो सही तरह लिखी नहीं गई थी, उनमें कोई एरर था। अडाप्टिव रिक्वायरमेंट्स चेंज क्या चीज़ होती है? A change request is classified based on the reason if a requested change requires the system to be amended। मतलब सिस्टम को आप अमेंड करना चाह रहे हैं, उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, मे बी उसके अंदर आप कोई नए कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग अडॉप्टिव रिक्वायरमेंट चेंज बोलते हैं। एक्सेप्शनल चेंज क्या होती है? जो हॉट फिक्स कहलाते हैं। A change request is classified as an exceptional change if the change must absolutely immediately be done at all cost। मतलब है कि ये चीज़ तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है, अदरवाइज आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो हॉट फिक्सेस वो होते हैं जो कि लाजमी और इमीजिएटली करने होते हैं। एक्सेप्शनल चेंज जो है कैन बी आइदर करेक्टिव और अडेप्टिव। मतलब है कि सिस्टम फेलियर की वजह से भी आपको फ़ौरन करना पड़ सकता है, और कुछ सिस्टम के अंदर चेंज आ रही है जिसमें सिस्टम आपका इवॉल्व करेगा, तो उस वजह से भी आ सकती है। तो ये हॉट फिक्सेस होते हैं, लाजमी करने होते हैं और इमीडिएट करने होते हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट करने का जो हमने क्लासीफाई किया था, डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड है हमारे पास। तो इसमें जो द मेथड फॉर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट चेंज डिपेंड्स ऑन देयर क्लासिफिकेशन। करेक्टिव है, अडेप्टिव है, या कोई हॉट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल चेंजेस मस्ट बी एनालाइज्ड, इवेल्युएट की जाती हैं, डिसाइड किया जाता है, एंड पोटेंशियली इम्प्लीमेंटेशन राइट अवे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अडॉप्टिव रिक्वायरमेंट चेंजेस आर प्रोसेस इन बैचेस। मतलब अगर आपके पास अडॉप्टिव है जिसमें आपने सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आनी थी, तो उसको हम लोग बैचेस में करते हैं। बैचेस का मतलब ये होता है कि आप उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर एक एक करके करते हैं। बैच प्रोसेसिंग जो होती है बेसिकली, अगर बैंक में देखा जाए तो जब आप लोग चेक देते हैं तो वो दिन दोपहर शाम तक के सारे चेक्स जमा कर लेते हैं, और शाम को अपनी ब्रांच बंद करने से पहले सारे चेक्स को कैश करवा देते हैं। तो ये बैच प्रोसेस होता है। ये रन टाइम पे नहीं हो रहा था, जबकि इसमें डिले होता है, एट द एंड सारा काम किया जाता है, उसको हम बैच प्रोसेस कहते हैं। Corrective requirements changes are usually analyzed, evaluated and must be implemented in due time after the change request has been filed। तो corrective जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका सिस्टम फेलियर का प्रॉब्लम है। तो इवेल्युएट करना, एनालाइज करना और उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस मेथड हैं एडाप्टिव के और करेक्टिव के। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं जी कि हमारे पास ये जो बेसिक मेथड है इसकी फ्लो डायग्राम किस तरह की है। तो इन दोनों मेथड्स के अंदर हम लोग इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं पहले, उसके बाद उसका जो चेंज है उसको वैल्यूएट किया जाता है कि वो किस प्रायोरिटी का है। तो अगर आपने चेंज को वैल्यूएट कर लिया है, तो अगर आप देखते हैं कि जी चेंज कही गई है कि जी चेंज कर दिया जाए सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स को, तो वो चेंज अप्रूव होता है कि नहीं होता। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके अंदर देखते हैं कि प्रायोरिटी क्या है रिक्वायरमेंट चेंज की, और देखा जाता है प्रायोरिटी के बेस पे आपने काम किया होता है वो आप प्रोजेक्ट के अंदर फिर चेंज असाइन कर देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है।
वेयर एज अगर दूसरा पार्ट देखा जाए जिसमें आपके रिजेक्शन की बात करें हम लोग, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिजेक्शन। तो आप लोग जो रिजेक्शन की वजह होती है वो बताई जाती है जी कि हम लोग उसको इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं करें क्योंकि इसमें लो प्रायोरिटी और हाई एफर्ट और कॉस्ट है। तो इस करेक्टिव एंड अडॉप्टिव चेंजेस के अंदर जो मेथड था, इसमें जो हमारे पास इम्पैक्ट एनालिसिस था, इसको देखते हैं कि ये इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। इम्पैक्ट एनालिसिस जो होता है वो एस्टिमेट करता है एफर्ट फॉर परफॉर्मिंग द चेंज। मतलब आपको कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितने रिसोर्स, कितना पैसा लगाना है अगर आप ये चेंज परफॉर्म करना चाहते हैं। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ऑल रिक्वायरमेंट्स अफेक्टेड बाय द चेंज आर सॉर्टेड। मतलब है कि आप इनको, जो जितनी चेंजेस आप लोगों ने की हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो बहुत सारी हो सकती हैं, तो उनको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि इनमें से ऊपर कौन सी रखनी है, प्रायोरिटी ऊपर कौन सी रखनी है, नीचे कौन सी रखनी है। सॉर्टिंग पहले कर दी जाती है। लेटर द पोस्टीरियर डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड आर आइडेंटिफाइड। और फिर हम लोग देखते हैं जी कि इनकी बेस के ऊपर हम लोगों ने कौन से आर्टिफैक्ट्स को डेवलप करना है। लेट्स सपोज को टेस्ट केस बनाने हैं या हमने इनको कंपोनेंट्स के थ्रू बना के पहले प्रूव कराना है, स्टेक होल्डर को दिखा के वैलिडेट करवाना है। For each affected artifact, the effort and cost of change is determined by summing up all the partial efforts। तो फिर हम लोग देखते हैं जी कि पार्शियल एफर्ट्स जितने भी होते हैं उन सबको हम सम अप करते हैं और हम एक टोटल कंजेक्टिव एक एफर्ट देखी जाती है जी कितना हमारा टाइम, कितने बंदे और कितनी कॉस्ट लगेगी और कितने दिन लगेंगे इस काम को फुलफिल करने के लिए। तो सिमिलरली आप लोगों की जो चेंजेस हैं, जो कंसिस्टेंट चेंजेस आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अंदर की जा रही होती हैं, मतलब उनको इंटीग्रेट किया जा रहा होता है इन रिक्वायरमेंट्स को चेंजेस के साथ, तो वो जो टोटल एफर्ट होता है वो उसके अगेंस्ट बहुत निग्लिजिबल लगता है और उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। एज लॉन्ग एज आप लोग काम कर रहे हैं, चीज़ ठीक होती जा रही है, तो आप लोगों को एफर्ट कम ही लगती है हमेशा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल, तो टोटल एफर्ट जो होती है वो यूजली डिफाइन होती है आप लोगों की मोस्ट सिग्निफिकेंट जब आप लोग उसके पोस्टीरियर आर्टिफैक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होता है जी कि कितना काम करना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। तो जहाँ पे आप लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं चेंजेस का कि उनकी एफर्ट कितनी लगेगी और कितना वो इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए। इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दोज रिक्वायरमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट आर अफेक्टेड बाय द रिक्वायरमेंट चेंज विच कैन बी डेवलप्ड बाय मीन्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जी के उनके साथ जो लिंकेज थी उन रिक्वायरमेंट के साथ दूसरी रिक्वायरमेंट्स की, जिसकी मे बी कोई ना कोई पार्ट जो है वो उस दूसरे रिक्वायरमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा हो, तो क्या उसमें कोई चेंजेस करने से उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोगों को हेल्प करती है कि आपने वहाँ पे भी चेंजेस करनी है, ये ना हो कि आप यहाँ चेंजेस कर लें वहाँ भूल जाएं चेंजेस करना, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो उसके साथ लिंक्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंसिडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है जी कि इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेसिबिलिटी की वो अभी इनकम्प्लीट है, अवेलेबल नहीं है और पूरी नहीं है। अगर इस तरह का मसला आप लोगों को आए तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास कर ऑन कर दी जाती है डोमेन एक्सपर्ट्स को, या डेवलपमेंट टीम को से क्वेश्चन पूछा जाते हैं इस तरह के कि जी के अगर हम लोग ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें तो क्या हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसके अंदर ये यूज़ हो रहा हो, तो वो उनको बेहतर पता होता है, वो आपको फिर बेहतर गाइड कर सकते हैं और वो हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो आप लोगों के एक्सपर्ट्स थे और डेवलपमेंट टीम वाले जो थे वो आपको इस ये चीज़ की हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जी कि ये आप लोगों के चेंजेस जो हैं वो अफेक्ट करेंगी दूसरों को कि नहीं। लेकिन बात ये कि ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास मौजूद हो तो ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं और आप लोग उसको खुद हेल्प जल्दी कर सकते हैं, ना कि आप एक डोमेन एक्सपर्ट्स या डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स के लिए दौड़ें उनसे पूछते फिरें चीज़ों को। एक चीज़ जब ट्रेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी आप लोगों को तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जी के इस चेंज की वजह से हमें बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पे भी हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो जब आप लोग इम्पैक्ट एनालिसिस को कंप्लीट कर लेते हैं तो चेंज कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो एवेल्युएट करता है लिस्ट ऑफ चेंज फील्ड्स कि जी जो जो चीज़ें हमें चेंज करवाई गई थी वो कैसी हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। दिस इज़ डन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कॉस्ट और बेनिफिट देखी जाती है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ और कितनी कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा लगी। द बेनिफिट ऑफ द चेंज कैन बी अवॉइडेड लॉस, शायद इसकी वजह से कोई लॉस बच गया हो आप लोगों का। इम्प्रूव मार्केट पोजीशन में भी आपका प्रोडक्ट जो है वो अब जब अमेंडमेंट्स के बाद जाएगा मार्केट में ज़्यादा बेहतर या अच्छा ख्याल किया जाए उसके बारे में। और अवॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज़, तो मे बी कोई पेनलाइजेशन आप लोगों को हो सकती थी जो कि अवॉइड कर ली, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो सकता था तो आप लोगों ने उससे पहले उसको ठीक कर लिया। तो जब आप लोगों की सारी चेंजेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर दी जाती हैं तो अप्रूवल के बाद
उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CCB करता है। द चेंजेस आर असाइंड टू द चेंज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर नेक्स्ट सिस्टम रिलीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इन चेंजेस को असाइन किया जाता है कि आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास चेंज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर आप उनको बताते हैं कि जी हमने कितनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया और उनको हम लोगों ने कौन सी रिलीज में इम्प्लीमेंट करना था या करना है या करेंगे। वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट चेंजेस, वैलिडेशन के अंदर आपके पास प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वैलिडेशन है जो कि सक्सेसफुली अप्लाई की जाए चेंजेस के ऊपर, आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेंज मैनेजर, चेंज कंट्रोल बोर्ड, और अगर कोई थर्ड पार्टी उसको देख रही है तो उसका भी उसमें पार्ट होगा। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं, हमारे पास एक लास्ट पार्ट है मेजरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो देखते हैं जी हम लोग रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मेजर कर सकते हैं। इस मेजरमेंट के लिए जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स जो होता है ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप लोग क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स को मेजर कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को भी देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। द मेजरमेंट रिजल्ट्स इंडिकेट, जब मेजरमेंट कर ली जाती है तो उसके रिजल्ट से आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और आपकी इंजीनियरिंग का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी क्या थी। वो कैसे करते हैं वो देखें। हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक्स होते हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस को चेक करने के लिए। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, कि हम लोगों ने कितनी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया और उनकी क्वालिटी क्या है। और सिमिलरली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसको हेल्प करता है हमें समझने में। दूसरी चीज़ जो हमारे पास वो प्रोसेस मैट्रिक है वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है रिगार्डिंग द प्रोग्रेस, कि आप लोग अभी तक कितना बेहतर चल रहे थे टाइमलाइन के अंदर। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, कि आपकी इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है उसका क्वालिटी क्या है। तो प्रोडक्ट और प्रोसेस मैट्रिक जो है वो इस तरह समझ शायद बेहतर ना आए, उसके लिए एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस मैट्रिक यूज्ड इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ मैट्रिक यूज्ड टू मेजर द रिक्वायरमेंट चेंजेस। तो हम लोग देखते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज हुई ओवर द टाइम विद इन 1 मंथ और अ वीक। तो मंथली भी देखा जा सकता है और वीकली भी देखा जा सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कितनी चेंजेस आ रही हैं। A product metric used in requirement engineering is a metric used to measure the number of requirement errors, कि आपकी requirements के अंदर कितने errors आ रहे हैं जो आपने किए हैं। Identified in a requirement specification at a given point in time, तो अब तक आप कहाँ तक कितना टाइम आप लोग कवर कर चुके हैं, लेट्स सपोज 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स या 1 साल, तो उसमें आप लोगों के पास कितनी रिक्वायरमेंट्स में एरर्स आए हैं जो कि आप लोगों ने ठीक किए हैं। तो एरर रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एज अ कंपैरेटिव वैल्यू, और कंपैरेटिव वैल्यू जो है वो शो करता है कि समथिंग हैज़ मोर ऑफ अ क्वालिटी देन समथिंग एल्स हैज़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक पर 100 पेजेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन और पर 1000 रिक्वायरमेंट्स, तो पेजेस में गलतियाँ स्पेसिफिकेशन के अंदर या रिक्वायरमेंट्स के 1000 रिक्वायरमेंट्स में कितनी गलतियाँ हुई। द रेट एट विच द रिक्वायरमेंट एरर्स अकर्ड, तो रिक्वायरमेंट्स में कितने एरर्स अकर हुए हैं इज एन इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, तो बताता है कि आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कितना अच्छा है। विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, और जितनी कम होंगी वो बताएगा आप लोगों को जी कि आप लोगों का प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस जो था रिक्वायरमेंट गैदर करने का वो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और वो बेहतर था। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।